student, welcome to the next video of Business Studies class 11 and this is lesson 12 and the last lesson of this B.st class 11 का last lesson है ये and hopefully इस lesson के बाद you all will be prepared for your examinations also. So till now we saw the various modes of entry into international business. That was the first part of international business and this is the second part of international business, and in this international business, in this video we are going to study about the export and import procedure. So first we are going to see about the export procedure, and the next video we will definitely go and see for the import procedure. And student, ये export and import procedure are too lengthy, so we require some patience also. बहुत सारे steps हैं, पढ़ते पढ़ते एक टाइम पे शायद लगे कि अरे ये इतना बड़ा है, but believe me it is very interesting. बहुत मज़ा आएगा कि कैसे एक्सपोर्ट, इतना हलवा थोड़ी होता है कि एक्सपोर्ट करना है, हमें सामान हमने उठाया एक्सपोर्ट कर दिया, नहीं ना. देखो अभी अगर हमें कुछ सामान घर से निकलते हैं और हमें कुछ सामान लेना होता है तो हम क्या करते हैं, पहले एक प्राइस डिसाइड करते हैं, अच्छा ये सामान लेंगे तो उसको इतने में खरीदेंगे, 4 दुकान देखते हैं, मोल भाव करते हैं. तो इसी तरह से जब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं कोई चीज़ या फिर हम कुछ मंगा रहे हैं अपनी कंट्री में, इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा मीन्स बाहर की कंट्री से सामान आ रहा है तो डेफिनेटली प्रोसीजर थोड़ा लॉन्ग होगा. सो एक एक करके हम सारे स्टेप्स देखेंगे और उसको एक्सप्लेन करने के लिए आई एम गोइंग टू टेक वन एग्जाम्पल. द एग्जाम्पल इज, से देयर इज मिस्टर एक्स इन इंडिया और वो एलईडी टीवी में डील करते हैं. ओके, वन डे मिस्टर एक्स को क्या हुआ, एक एलईडी टीवी के लिए उनको उनके पास एक एक्सपोर्ट करने के लिए उनको एक कॉन्टैक्ट मिलता है और 100 टीवी उन्हें एक्सपोर्ट करना है. ओके, so with the help of this example we are going to see all these steps of export procedure. So first let's see quickly the all the steps, the name of the steps, and then in detail we are going to study about all these steps one by one. So the first step is receipt of inquiry and sending quotations, then receipt of order or indent, then assessing the importer's creditworthiness and securing a guarantee for payments. Fourth is obtaining export license. Fifth, obtaining pre-shipment finance. Sixth, production or procurement of goods. 7, pre-shipment inspection. 8th is your excise clearance. 9th, obtaining certificate of origin. Then 10th is your reservation of shipping space. 11, packing and forwarding. Then insurance of goods, customs clearance. 14th is your obtaining mate's receipt. 15th, payment of freight and issuance of bill of lading. 16 is preparation of invoice, and 17 is your securing payment. So these are the 17 steps in the procedure of exporting. Now let's see one by one step in the procedure of your exporting. So the very first step is receipt of inquiry and sending quotation. So the exporters can be informed of such an inquiry even by way of advertisement in the press put in by the importer. So अब से लाइक मिस्टर एक्स है हमारे इंडिया में, वो एलईडी टीवी में डील करते हैं और एक बार उनको क्या हुआ, एक इन्फॉर्मेशन मिला, एक इंक्वायरी, उन्होंने एक न्यूज़पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट देखा. ठीक, उस एडवर्टाइजमेंट में लिखा हुआ था कि सम कंपनी इन फ्रांस की एक कंपनी है और दे वांट 100 एलईडी टीवी. ठीक, 100 एलईडी टीवी उनको चाहिए. The exporter sends a reply to the inquiry in the form of quotation referred to as pro forma invoice. अब जो एक्सपोर्टर है, यानी एक्सपोर्टर हमारे केस में कौन है, मिस्टर एक्स, क्योंकि उन्हें एक्सपोर्ट करना है ना वो 100 टीवी एलईडी टीवी बना के. सो एक्सपोर्टर, जो इंक्वायरी आई थी ना कि 100 टीवी चाहिए हमें, उसकी इंक्वायरी के आंसर में उन्होंने एक कोटेशन तैयार किया. अब भाई आप बताओगे ना कि हमारे पास हम 100 टीवी में क्या प्राइस हम कोट कर रहे हैं, और इसको क्या बोलते हैं, ये कोटेशन जो होता है इट इज सेड टू बी प्रो फॉर्मा इनवॉइस. क्लियर? द प्रो फॉर्मा इनवॉइस कंटेन्स इंफॉर्मेशन
about the price at which the exporter is ready to sell the goods and also provides information about the quality, grade, size, weight, mode of delivery, type of packing and payment terms. सो प्रोफॉर्मा इनवॉइस क्या होता है? इसमें आपकी सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है रिगार्डिंग कि एक्सपोर्टर क्या प्राइस चार्ज कर रहा है, लाइक 100 एलईडी टीवी से ईच एलईडी टीवी एट रुपीज़ 10,000 हमने प्राइस बता दिया। उसकी क्वालिटी क्या होगी, उसमें ऐसी क्वालिटी होगी, ग्रेडिंग ये होगा, साइज़ उसकी से 32 इंच की टीवी एलईडी होगी हमारे, वेट उसका 10 केजी पर टीवी होगा, मोड ऑफ डिलीवरी लाइक हम शिप से डिलीवरी करेंगे, टाइप ऑफ पैकिंग हम कार्टन पैकिंग करेंगे, पेमेंट टर्म्स होंगे सारे कि क्या क्या पेमेंट टर्म्स की 50% आप अभी कर दो, 25% बाद में करेंगे, फिर 25% जब हमें हैंड ओवर हो जाएगा, ठीक, वो सारी चीज़ों के बारे में पूरी डिटेलिंग इट इज़ सेट टू बी प्रोफॉर्मा इनवॉइस। क्लियर? सो क्या होगा, एक्सपोर्टर को इन्फॉर्म किया जाएगा थ्रू एडवर्टीजमेंट, फिर एक्सपोर्टर जो रिप्लाई भेजेगा रिगार्डिंग दी साइज, ग्रेड, क्वालिटी, इन सब के बारे में पूरा एक लिस्ट बना के भेजेगा, उसे कहते हैं प्रोफॉर्मा इनवॉइस। सो दिस इज रिसिप्ट ऑफ इंक्वायरी एंड सेंडिंग कोटेशन, मीन्स इंक्वायरी के बारे में पता चलता है और वो कोटेशन सारे सेंड करता है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। क्लियर? नाउ द सेकेंड स्टेप सेज रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर और इंडेंट। Now, export price and other terms and conditions acceptable. It places an order for the goods to be dispatched. अब अगर जो कंट्री लाइक फ्रांस की जो कंपनी है जिसे 100 एलईडी टीवी चाहिए, अब सपोज उसने सारे कोटेशंस को पढ़ा अच्छे से, ठीक, पढ़ने के बाद उसको मिस्टर एक्स, जो हमारे इंडिया के मिस्टर एक्स हैं जो एलईडी टीवी सप्लाई करते हैं, उनका कोटेशन बेस्ट लगा, ठीक, उनको सारे प्राइस और सारी टर्म्स कंडीशन उनको सही लगे। नाउ फ्रांस की वो कंपनी क्या करेगी, मिस्टर एक्स को उसने ऑर्डर दे दिया, प्लेसेस एन ऑर्डर फॉर द गुड्स टू बी डिस्पैच, कि आप 100 एलईडी टीवी मुझे डिस्पैच करेंगे। क्लियर? नाउ दिस ऑर्डर, ये जो ऑर्डर प्लेस किया है फ्रांस की कंपनी ने, इट इज ऑल्सो नोन एज इंडेंट, कंटेन्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स ऑर्डर्ड, प्राइसेस टू बी पेड, डिलीवरी टर्म्स, पैकिंग एंड मार्किंग डिटेल्स एंड डिलीवरी इंस्ट्रक्शंस। और दिस इंडेंट, इसमें क्या क्या डिस्क्रिप्शन होते हैं रिगार्डिंग गुड्स, कौन सा गुड्स ऑर्डर किया गया है, क्या हमें प्राइस पे करना है, भाई हम खरीद रहे हैं, जो फ्रांस की कंपनी खरीद रही है वो प्राइस इतना पे करेगी, वो लिख के दिया उसने, डिलीवरी के टर्म्स क्या होंगे, पैकिंग कैसी होगी, सारी डिटेलिंग, डिलीवरी इंस्ट्रक्शन एंड ऑल। सो रिसिट ऑफ ऑर्डर और इंडेंट, दिस इज द सेकेंड स्टेप। नाउ we comes to the third step, that is assessing the importer's creditworthiness and securing a guarantee for payment. So now the exporter will make inquiry about the creditworthiness of the importer. Means अब हमारे केस में जो मिस्टर एक्स है उनको कैसे पता चलेगा कि जो फ्रांस के जो बायर है वो हमारा पेमेंट टाइम पे कर देगा कि नहीं कर देगा। एंड स्टूडेंट, वन मोर थिंग, दैट क्रेडिट वर्दिनेस, व्हाट क्रेडिट वर्दिनेस इज, इट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, बट स्टिल आई विल जस्ट टू मेक यू रिमाइंड वंस अगेन। क्रेडिट वर्दिनेस एक्चुअली इट इज एन असेसमेंट बाय एनी लेंडर और सेलर टू इंश्योर दैट द बोरोवर और बायर पेज ऑन टाइम। अरे जब हम भी पैसे किसी को देते हैं तो हम पहले ये इंश्योर कर लेते हैं ना कि हाँ सामने वाला हमसे अगर 100 रुपये 200 रुपये भी लिया तो भैया दे देगा ना, इंश्योर करते हैं ना, जस्ट वही क्रेडिट वर्दिनेस चेक करना। क्लियर? सो टू मिनिमाइज सच रिस्क, मोस्ट एक्सपोर्टर डिमांड अ लेटर ऑफ क्रेडिट फ्रॉम द इम्पोर्टर, और जस्ट टू मिनिमाइज सच काइंड ऑफ रिस्क, नॉन पेमेंट रिस्क, इस केस में क्या नॉन पेमेंट है ना, कि अगर ऐसा कोई रिस्क ना हो, इसके लिए क्या होता है, मोस्ट ऑफ द एक्सपोर्टर दे वो डिमांड करते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट इम्पोर्टर से। इम्पोर्टर से बोलते हैं कि आप पहले मुझे अपना लेटर ऑफ क्रेडिट दिखा दीजिए। नाउ व्हाट इज दिस लेटर ऑफ क्रेडिट? अच्छा, इन आर केस मिस्टर एक्स wanted to be on the safer side. मिस्टर एक्स ने, है ना, जो इंडिया के जो जिनको एक्सपोर्ट करना है 100 एलईडी टीवी, सो ही आस्क्ड द बायर टू प्रोवाइड लेटर ऑफ क्रेडिट। ओके, अच्छा, बिफोर प्रोसीडिंग लेट अस गिव द बायर नेम, जो हमारे केस में बायर है उसको हम लोग नेम दे देते हैं मिस्टर वाई ऑफ फ्रांस, ठीक। सो नाउ व्हाट इज दिस लेटर ऑफ क्रेडिट? So it is a guarantee issued by the importer's bank that it will honor payment up to a certain amount
of export bills to the bank of the exporter. So actually it is a letter from a bank. बैंक की तरफ से लेटर होता है और गारंटिंग दैट अ बायर विल पे द सेलर ऑन टाइम, कि जो खरीदार है वो सेलर को सारा पेमेंट टाइम पे कर देगा, क्योंकि भाई हमें भी तो मतलब एक वो करना होगा ना कि हाँ हमारा पेमेंट आ जाएगा, गारंटी हमें चाहिए। तो ये गारंटी हमें कौन देगा? ये गारंटी हमें बायर का बैंक देगा। कि कोई भी ऐसा वैसा आके बोल देगा कि हाँ दे देगा, पेमेंट कर देगा, तो आप नहीं मानते हो ना, जब तक कोई बहुत ही विश्वसनीय कोई नहीं होता है। तो यहाँ पे बैंक बोलेगा। एंड if the buyer is unable to pay to make any payment, the bank will be required to cover the unpaid amount. So here in our case, buyer, that is Mr. X, goes to his bank to issue him letter of credit. हमारे केस में मिस्टर वाई हैं फ्रांस के, वो अपने बैंक जाएंगे और लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करवाएंगे बैंक से। लेकिन हैव यू एवर थॉट दैट व्हाई विल बैंक इशू लेटर ऑफ क्रेडिट? Yes, bank will issue letter of credit only after getting some assets on stake. Assets like your car, house, any you may say any tangible thing. कोई भी एसेट जो इक्विवेलेंट हो जितना आप अमाउंट मनी का चाह रहे हैं। क्योंकि भाई अगर मान लो कल को मिस्टर वाई पेमेंट नहीं कर पाए बैंक को, तो बैंक कहाँ से पैसा रिकवर करेगा? वो पैसा वहीं से रिकवर करेगा, वो जो एसेट होंगे उसको सोल्ड आउट कर देगा और पैसा अपना रिकवर कर लेगा। गॉट इट? सो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया? इम्पोर्टर्स का क्रेडिट वर्दीनेस चेक कर लिया। अब हमारे केस में जो हमारे मिस्टर एक्स हैं इंडिया के, उनको लेटर ऑफ क्रेडिट मिल गया और अब वो बहुत उनको शांति मिली होगी ना कि हाँ हम अगर 100 एलईडी टीवी पे दे देंगे तो हमें पेमेंट भी टाइम पे मिल जाएगा। क्लियर? सो द नेक्स्ट स्टेप इज योर ऑब्टेनिंग एक्सपोर्ट लाइसेंस। सो अब देखो ना, जब हमें कार भी चलाना होता है तो वी यूज टू गेट अ लाइसेंस। हमें कार ड्राइव करना है, उसका हमें लाइसेंस लेना पड़ता है। तो जब एक्सपोर्टिंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली वन विल रिक्वायर a export license, then only you are going to do some exporting. Okay, so export of goods in India is subject to custom laws which demand that the export firm, जो भी exporting firm होती है, जो सामान को export कर रही होती है, सामान को दे रही होती है, बाहर दूसरी कंट्री में सोल्ड आउट कर रही होती है, they must have an export license. आपके पास export license होना चाहिए before proceeding for export. आप आगे प्रोसीड कर रहे हैं उसके पहले आपके पास एक्सपोर्ट का लाइसेंस होना चाहिए। ओके, अब एक्सपोर्ट लाइसेंस कैसे के लिए क्या क्या हमें फॉर्मेलिटीज करनी होंगी? सो द फर्स्ट स्टेप इज यू हैव टू ओपन अ बैंक अकाउंट इन एनी बैंक ऑथराइज बाय आरबीआई। आरबीआई से ऑथराइज किसी भी बैंक में वन हैज टू ओपन अ बैंक अकाउंट। देन द सेकेंड स्टेप इज ऑब्टेनिंग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर। अब आपको एक आईसी नंबर लेना होगा। देखो इतने सारे एक्सपोर्टर होंगे, उनके नाम भी ऐसा थोड़ी होगा कि एक ही नाम के कई लोग ना हो। अब उनको एक दूसरे से कैसे हम अलग करेंगे? सो बाय दिस नंबर ओनली। सो द एक्सपोर्टर दे नीड टू गेट दिस आईईसी नंबर, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर। और वो नंबर हमें कहाँ से मिलेगा? वो नंबर हमें कौन देगा? वो नंबर हमें देगा डायरेक्टरेट जनरल फॉरेन ट्रेड, डीजीएफटी, और रीजनल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग अथॉरिटी, ईदर ऑफ दीज। ओके, देन अब हमें ये नंबर तो चाहिए। सो इस नंबर के लिए भी हमें क्या करना होगा? फॉर ऑब्टेनिंग द आईसी नंबर, अभी नंबर हमें चाहिए ना, तो उसके लिए अ फर्म हैज़ टू अप्लाई टू डायरेक्टर जनरल फॉर फॉरेन ट्रेड। कहाँ पे अप्लाई करेंगे? डीजीएफटी में। और डॉक्यूमेंट्स हमें क्या क्या आप ऐसे थोड़ी अप्लाई करोगे, जब कहीं अप्लाई करना होता है तो उसके साथ आपको लाइक आप किसी स्कूल के भी अगर एडमिशन के लिए अप्लाई करते हो तो आपको वहाँ फोटो लगती है, सिग्नेचर लगता है, ये सब होता है ना। सो जब आप एक्सपोर्ट के लिए, आप नंबर के लिए अप्लाई कर रहे हो, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो उसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे? तो द डॉक्यूमेंट्स आर एज फॉलोज। दे आर योर एक्सपोर्टर इम्पोर्टर प्रोफाइल, देन बैंक रिसिप्ट फॉर रिक्विजिट फीस, then certificate from the banker on the prescribed form. What is this certificate? So this certificate is a document signed by a bank official which states that how much money the seller has in the bank on that day. इतना पैसा है बैंक में, अकाउंट में। Clear? Then certificate, then 2 copies of photographs attested by the banker, details of non-resident interest,
and declaration about the applicant's non-association with caution listed firm. What is this caution listed firm? So it means that the caution list contains the list of goods on which there is restriction on export. मीन्स आप कोई भी ऐसा सामान एक्सपोर्ट नहीं करेंगे जहां जिस पे रिस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं. क्लियर? देन आईसी नंबर तो मिल गया. अब नेक्स्ट क्या? नाउ आईसी नंबर लेके यू हैव द एक्सपोर्टर दे हैव टू गेट देमसेल्फ रजिस्टर्ड विद एप्रोप्रिएट एक्सपोर्ट प्रमोशन council. So it is obligatory for every exporter to get registered with the appropriate export promotion council. अब क्यों जरूरी है भाई? हमें आईसी नंबर मिल गया, रजिस्ट्रेशन कराना क्यों जरूरी है? सो स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड फॉर अवेलिंग सर्टेन बेनिफिट्स अवेलेबल टू द एक्सपोर्ट फर्म. जो फर्म जो एक्सपोर्ट करती है ना, उसको कुछ बेनिफिट्स गवर्नमेंट देती है. सो वो बेनिफिट आपको तभी मिलेगा अगर आप रजिस्टर्ड होंगे तो. ओके. अब रजिस्ट्रेशन कहाँ पे करवाएं? सो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल EEPC एंड अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल AEPC में गवर्नमेंट ने सेटअप किया हुआ है. यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा. क्लियर? ये हो गया. नेक्स्ट, रजिस्टरिंग विद एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉर्पोरेशन ECGC इन ऑर्डर टू सेफगार्ड अगेंस्ट रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट. अब क्या करना है? आपने रजिस्टर्ड भी करा लिया. नाउ one has to get registration with ECGC. It is necessary. And why it is necessary? To protect overseas payment from certain risk. Like अगर हम क्या होता है, कई बार वॉर वगैरह छिड़ जाती है, इसकी वजह से रिस्क हो जाता है ना, हमें नॉन पेमेंट का रिस्क होगा. वो रिस्क से बचने के लिए दिस रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड. एंड दिस रजिस्ट्रेशन it helps the export firm in getting financial assistance from commercial banks and other financial institutions. Now, the next step is your obtaining pre-shipment finance. So, exporter approaches his banker for obtaining pre-shipment finance to undertake export production. अब IC number मिल गया. Okay. So, now next, the exporter has to get some funds for all the cost that he or she, like in our case Mr. X को जो भी costing जो उनको खर्चा हो रहा है उसके लिए he requires some pre-shipment finance. So what is this pre-shipment finance? It is the finance that the exporter needs for procuring raw materials and other components, processing and packing of goods and transportation of goods to the port of shipment. So ये सारे खर्चे जो होते हैं उस खर्चे को क्या बोलते हैं? प्री शिपमेंट फाइनेंस. मतलब जो भी रॉ मटेरियल प्रोक्योर करेगा मिस्टर एक्स, लेंगे एलईडी टीवी बनानी है तो उसके लिए जो भी रॉ मटेरियल लगेगा, जो भी प्रोसेसिंग और पैकेजिंग का जो भी गुड्स ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो आएगा, ये सारे कॉस्टिंग को प्री शिपमेंट फाइनेंस कहते हैं. ये कुछ खर्चे वो अपने पॉकेट से थोड़ी लगाएंगे, कुछ तो हेल्प होनी चाहिए ना. सो ये अब ये फाइनेंस उनको अवेलेबल होगा, उनको ऑब्टेन वो करेंगे. देन द सिक्स्थ स्टेप says the production or procurement of goods. Now Mr. X या तो goods खुद प्रोड्यूस करेंगे या फिर वो कहीं से बाहर से एलईडी टीवी बनी हुई पहले इंपोर्ट करेंगे फिर एक्सपोर्ट करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं ना. सो एक्सपोर्टर क्योंकि उन्होंने फाइनेंस अब रख लिया, उनके पास पैसे आ गए, अब वो या तो प्रोडक्शन स्टार्ट कर दें, और अगर वो खुद प्रोडक्शन इतना नहीं कर सकते, लाइक 100 एलईडी टीवी का मिला है और उनकी कैपेसिटी से 80 एलईडी टीवी बना सकते हो, तो 20 वो पहले इंपोर्ट करेंगे फिर एक्सपोर्ट करेंगे. माइट बी द केस एनीथिंग. सो एक्सपोर्टर प्रोसीड्स टू गेट द गुड्स रेडी एज पर द स्पेसिफिकेशन ऑफ द इम्पोर्टर. सो याद है वो जो फ्रांस की जो कंपनी थी उसने पूरा एक स्पेसिफिकेशन पूरा उसमें मेंशन किया था ना कि मुझे ऐसा क्वालिटी का इतना साइज होना चाहिए, ये चीज़ होना चाहिए, वो सारी चीज़ें उसने मेंशन की थी. क्लियर? उसी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो एक्सपोर्टर है उसे प्रोसीड करेगा वो गुड्स. ईदर द फर्म इटसेल्फ गोज इन फॉर प्रोड्यूसिंग द गुड्स और एल्स इट बाइज फ्रॉम द मार्केट. या तो जो स्पेसिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आप मिस्टर एक्स जो है हमारे केस में वो खुद से प्रोड्यूस करें, या
उसी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग वो या तो फिर गुड्स को परचेज करें मार्केट से। क्लियर? So now the next point is your pre-shipment inspection. So remember student, in the pro forma invoice, the quality, size of the product, everything was mentioned कि हमें इस तरह का चीज़ें चाहिए. So now how means who is going to ensure this quality? So it will be ensured in pre-shipment inspection. So you know one thing, that in order to ensure that only good quality products are exported, the Indian government has passed Export Quality Control and Inspection Act 1963 for this purpose. और इसके लिए some agencies has been authorized to act as an inspection agency. जो कुछ agencies हैं जिन्हें ये authority मिली है to check means for the pre-shipment inspection. जब आप shipment के लिए सामान बाहर भेजने के लिए आप ready हो, तो उसके पहले आपके सामान का inspection होगा. Clear? Then the pre-shipment inspection report is required to be submitted along with other export document at the time of export. और जिस टाइम पे आप एक्सपोर्ट कर रहे हो सामान, उसमें बाकी डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन का रिपोर्ट भी साथ में लगाना पड़ेगा कि हाँ आपका जो सामान है वो एक अच्छी क्वालिटी का सामान है. एंड you know student, there is certain exporting firms where this pre-shipment inspection is not required. So inspection is not compulsory in case the goods are being exported by these firms. They are your star trading houses, export houses, industrial units set up in export processing zones, that is your EPZs, and special economic zones, that is your SEZs, and 100% export oriented units, that is your EOUs. So these are certain exporting firms where pre-shipment inspection is not required. And the next step is your excise clearance. You know, this excise duty, actually it is a tax payable on the materials used in manufacturing goods for export. जब भी हम कोई सामान एक्सपोर्ट के लिए बनाते हैं तो उसमें जो भी सामान एंड प्लीज़ नोट इट कि मैन्युफैक्चर करते हैं फॉर एक्सपोर्ट के लिए, बट सपोज अगर हम मीन्स देयर इज़ अ फर्म डीलिंग इन ट्रेडिंग ओनली, मीन्स कहीं से लेके और कहीं सामान एक्सपोर्ट करती है, दैट पर्टिकुलर फर्म इज़ नॉट मैन्युफैक्चरिंग एक्चुअली, सो वहाँ पे एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगी. तो एक्साइज ड्यूटी इट इज़ ओनली पेबल ऑन द मटीरियल्स यूज इन मैन्युफैक्चरिंग गुड्स. The exporter therefore has to apply to the concerned excise commissioner in the region with an invoice. ओके पूरा इनवॉइस के साथ उस रीजन के एक्साइज कमिश्नर के पास एक उस जो एक्सपोर्टर उसे अप्लाई करना पड़ता है, और इफ द एक्साइज कमिश्नर इज सेटिस्फाइड ही इशूज द एक्साइज क्लियरेंस एंड sometime and there is a refund of excise duty and it is known as duty drawback. So let me explain it to you. Means excise duty, I have told you that it is a kind of tax paid on materials used in manufacturing good. And you know student, in many cases the government they exempts payment of excise duty. मीन्स जो एक्साइज ड्यूटी के लिए जो पेमेंट करना पड़ता है उसको वेव ऑफ कर देती है और लेटर ऑन रिफंडेड. अगर उस टाइम वेव ऑफ नहीं की तो बाद में आप उसका प्रूफ दिखा दोगे तो लेटर ऑन इट विल बी रिफंडेड. ओके सॉरी. एंड मीन्स इफ द गुड्स आर प्रोड्यूस्ड फॉर एक्सपोर्ट. ओके, so the refund of excise duty it is known as your duty drawback. So please just remember all these words. What is duty drawback, what is pro forma invoice. Okay, so और अच्छा ये बताओ क्यों गवर्नमेंट वेव ऑफ कर देती है एक्साइज ड्यूटी. यस, गवर्नमेंट डू सो मीन्स दिस थिंग सो दैट जो कंट्री की एक्सपोर्ट वो जो कंट्री का जो एक्सपोर्ट है ना वो और प्रॉस्पर कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी एक्सपोर्टिंग गुड्स एंड सर्विसेज स्टार्ट कर सके, इसलिए गवर्नमेंट टैक्स कम कर देती है. और इसकी वजह से क्या होगा, जब टैक्स कम हो जाएगा एक्सपोर्ट पे तो जो मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्ट के लिए गुड्स बनाते हैं प्रोड्यूस करते हैं उनकी कॉस्टिंग वो कम आएगी. ओके, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हो जाएगा और इसकी वजह से वो जो मीन्स जो एक्सपोर्टर है वो और मोटिवेट होगा और जो बिजनेसमैन है वो और मोटिवेट होगा और it will increase the export and due to which
means when there will be increase in export, definitely more foreign reserve will increase, है ना. जब एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो फॉरेन रिजर्व भी तो हमारा बढ़ेगा. क्लियर. Now the next step is obtaining certificate of origin. So for availing trade concessions and other benefits, the importer may ask the exporter to send a certificate of origin. And what is this certificate of origin? It is a proof that the goods have actually been manufactured in the country from where the export is taking place. And this certificate, ये कहाँ से हमें मिलेगा? It can be obtained from the trade consulate located in the exporter's country. So let me explain you this, that as after your excise duty, this is the next step of obtaining certificate of origin. So अब certificate of, see, अभी तो हम इंडिया की बात की, ठीक है, जहाँ पे हमें एक्साइज ड्यूटी पे करते हैं और उसका प्रूफ दिखा के उसे वेव ऑफ भी कर लेते हैं. पर व्हाट अबाउट बायर्स कंट्री? जो बायर की कंट्री है वहाँ पे क्या होगा? लाइक हम लोग के केस में तो मिस्टर वाई है ना, बायर फ्रांस में जो है. सो बायर्स कंट्री ऑल्सो प्रोवाइड सम टैक्स रिलीफ ऑन गुड्स इम्पोर्टेड. अब उनकी कंट्री भी तो उनको कुछ टैक्स रिलीफ देगी जो सामान वो अगर इम्पोर्ट करके वहाँ पे सोल्ड आउट कर रहे हैं तो. ओके. सो अब जो भी सामान, अब गवर्नमेंट को मीन्स हाउ द गवर्नमेंट विल इंश्योर कि ये जो लाइक हम लोग का जो टीवी का केस है ना, कि फ्रांस की गवर्नमेंट को ये कैसे वो इंश्योर करेगी कि जो टीवी है वो मिस्टर वाई ने बनाया नहीं है, वो इंपोर्ट किया है. तो इसको कैसे वो इंश्योर करेगी? मीन्स दीज गुड्स आर इंपोर्टेड एंड नॉट मैन्युफैक्चर्ड इन देयर ओन कंट्री एज. तो इसके लिए क्या होगा? इसके लिए जो जो इम्पोर्टर है मीन्स मिस्टर वाई फ्रांस में, वो क्या करेंगे? वो मिस्टर एक्स इंडिया के मिस्टर एक्स से उनसे बोलेंगे कि आप हमें सर्टिफिकेट एक प्रोवाइड करिए. और वो सर्टिफिकेट क्या होता है? उस सर्टिफिकेट का नाम होता है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, जिसमें ये मेंशन होता है, वो एक इट एक्ट एज ए प्रूफ कि ये सामान जो है वो कहाँ पर बना हुआ है. ठीक. तो मिस्टर एक्स इंडिया से वो सर्टिफिकेट लेके और वो ट्रांसफ़र कर देंगे मिस्टर वाई को, सो दैट मिस्टर वाई वो शो कर देंगे कि वो जो एलईडी टीवी उन्होंने इंपोर्ट किया है वो एक्चुअली उन्होंने इंपोर्ट किया है और खुद से नहीं बनाया है. क्लियर. सो दिस इज सर्टिफिकेट ऑफ origin. It is only a proof that goods have actually been manufactured in the country from where the export is taking place. Okay. So what next? Now next is your transportation. So how will these LED TV sets, how will they be transported? So transportation across the border, it takes place either through airways or seaways. Okay, and you know that transportation through seaways is cheaper. So the exporter, Mr. X of India, choose this option of transport. So what he did, the exporting firm applies to the shipping company for provision of shipping space. Okay, so अब मिस्टर एक्स ने क्या किया? जो भी he contracted for the shipping company who was leaving for France, जो फ्रांस के लिए जा रही होगी शिपिंग कंपनी से, उन्होंने कांटेक्ट किया. देखो अब हमको भी जब कहीं जाना होता है तो हम क्या करते हैं? ट्रेन से रिजर्वेशन करवाते हैं, है ना, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो. सो जस्ट लाइक दैट एक्सपोर्टर विल ऑल्सो गेट द रिजर्वेशन डन. ओके. इट हैज़ टू स्पेसिफाई. अब रिजर्वेशन में उन्होंने क्या, उनको सारे गुड्स के बारे में सारी डिटेलिंग देनी पड़ेगी. सो स्पेसिफाई द टाइप्स ऑफ गुड्स टू बी एक्सपोर्टेड, प्रोबेबल डेट ऑफ शिपमेंट, किस दिन उनको जाना है, एंड द पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन. On acceptance of application for shipping, the shipping company will issue the shipping order. Okay. Now what is this shipping order? जब कंफर्मेशन हो जाता है तो शिपिंग कंपनी जो है एक शिपिंग ऑर्डर देती है. So what is this shipping order? Actually it is an instruction for the captain of the ship to receive the specified goods from the exporter. ये सामान है और आपको ये बंदा होगा, मिस्टर एक्स है,
इनसे आपको ये सामान इस जगह से पिक करना है। क्लियर? सो दिस इज योर रिजर्वेशन ऑफ शिपिंग स्पेस। सो रिजर्वेशन करा लिया तो पैकिंग भी तो करनी होगी। सो the next step is your packing and forwarding. So the goods are then properly packed and marked with necessary details such as name and address of the importer, gross and net weight, port of shipment and destination, country of origin, etc. So goods को अच्छे से पैक कर लिया और उस पर सारी मार्किंग कर दी। मार्किंग विद दीज डिटेल्स, नेम और एड्रेस इम्पोर्टर का, जो ग्रॉस एंड नेट वेट है जो सामान है उसका। ओके, then the exporter then makes necessary arrangement for transportation of goods to the port. अब पोर्ट तो आपके घर के पास नहीं होगा ना, तो पोर्ट तक तो सामान पहुंचाना होगा ना। लाइक हमारा जो मिस्टर एक्स हैं वो सपोज दिल्ली में है, तो दिल्ली में तो कोई सीवेज का कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो उनको वहाँ से कोई जहाँ भी शिपमेंट होता होगा वहाँ तक तो उन्हें वाया ट्रेन उनको पहुँचाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए उनको अरेंजमेंट करना पड़ेगा सो दैट द गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द पोर्ट। तो से उन्होंने रेलवे के थ्रू कराए। सो ऑन अब जब रेलवे से सामान अब भेजना है पोर्ट तक, देन व्हाट विल हैपन? ऑन लोडिंग गुड्स इनटू द रेलवे वैगन, द रेलवे अथॉरिटीज इशू अ रेलवे रिसिप्ट विच सर्व्स एज अ टाइटल ऑफ द गुड्स। सो जब आप मिस्टर एक्स ने सारा सामान लोड करवा दिया रेलवे वैगन पे, तो रेलवे अथॉरिटी ने उनको एक रेलवे रिसिप्ट इशू कर दिया। ओके, विच सर्व्स एज अ टाइटल ऑफ द गुड्स। क्लियर टिल है? नाउ याद है हम लोगों ने इंश्योरेंस में पढ़ा था ना कि जब सामान अब इतना बड़ा सामान है तो उसका इंश्योरेंस भी तो करा लेना, मान लो अगर लॉस हो गया तो। सो द नेक्स्ट स्टेप विल बी योर इंश्योरेंस ऑफ गुड्स। द गुड्स आर इंश्योर्ड विद एन इंश्योरेंस कंपनी to protect against the risk of loss or damage of the goods due to perils of the sea during the transit. अब जब सामान हमारा सी के थ्रू जा रहा है तो हो सकता है वहाँ कुछ ऐसा कोई पेरिल ना आ जाए जिसकी वजह से हमारा सामान खराब हो जाए। सो उससे बचने के लिए क्या होगा? अब इंश्योरेंस हमने गुड्स का करा लिया। बट इन आर केस बिकॉज मिस्टर एक्स जो है ना वो सामान कैसे भेज रहे हैं? थ्रू मरीन, थ्रू सी। सो वो कौन सा इंश्योरेंस लेंगे? मरीन इंश्योरेंस। क्लियर टिल हियर? सो नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज योर कस्टम क्लियरेंस। सो द गुड्स मस्ट बी क्लियर्ड फ्रॉम द कस्टम बिफोर दीज कैन बी लोडेड ऑन द शिप। सो अब क्या होगा? जो गुड्स है वो पोर्ट पे पहुंच गया। ओके, और जो मिस्टर एक्स हैं अब उन्होंने एक एजेंट को हायर कर लिया टू टेक केयर ऑफ दी फॉर्मेलिटीज। पोर्ट पे भी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं, तो उसको देखने के लिए जो भी फॉर्मेलिटीज टू बी फुलफिल्ड एट द पोर्ट, मिस्टर एक्स ने एक एजेंट को हायर किया। एंड व्हाट फॉर्मेलिटीज? सो द फॉर्मेलिटी इज योर कस्टम क्लियरेंस। ये जो फॉर्मेलिटी है बहुत बड़ी फॉर्मेलिटी होती है इसको क्लियर करने के लिए। ठीक है, सो नाउ students that goods it must be cleared from custom before they are loaded on the ship, and to get this custom clearance exporter has to prepare shipping bill. And what is this shipping bill? Shipping bill is the main document on the basis of which the custom office gives the permission for export. Okay, or in simple language this shipping bill, इट इज़ अ डॉक्यूमेंट जिसमें सारे डिटेल्स मेंशन होते हैं। डिटेल्स रिगार्डिंग गुड्स टू बी एक्सपोर्टेड, नेम ऑफ द वेसल, पोर्ट वेयर द गुड्स टू बी डिस्चार्ज, कंट्री ऑफ फाइनल डेस्टिनेशन, एक्सपोर्टर्स नेम एंड एड्रेस, एटसेट्रा। ओके, एंड along with this means along with shipping bill 5 copies of the following documents are submitted. कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है वो? द डॉक्यूमेंट्स आर योर एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपोर्ट ऑर्डर, लेटर ऑफ क्रेडिट, कमर्शियल इनवॉइस, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन, मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी। सो शिपिंग बिल के साथ ये सारे डॉक्यूमेंट्स के भी 5 कॉपीज दे हैव टू सबमिट इट। ओके, मिस्टर एक्स हैज टू सबमिट इट। नाउ these documents are required to get entry into the dock, and after submission of this document the superintendent of the concerned port trust is approached for obtaining the carting order. Yes, means now the agent has hand over the documents at the dock gate and then he will get entry and it is known as carting
order. So carting order is the instruction to the staff at the gate, जो gate पे खड़ा रहेगा ना उसके लिए instruction है carting order, that gate of the port to permit the entry of the cargo inside the dock, कि अब gate के अंदर आप कार्गो को जो भी सामान है वो अंदर जा सकता है डॉक तक. नाउ कस्टम क्लियरेंस तो हो गया एंड द गुड्स आर लोडेड ऑन द शिप एंड द एजेंट उसको एक रिसिप्ट मिल गया एंड दैट रिसिप्ट इज नोन एज मेड्स रिसिप्ट. सो नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज ऑब्टेनिंग मेड्स रिसिप्ट. सो अ मेड रिसिप्ट इज अ रिसिप्ट issued by the commanding officer of the ship when the cargo is loaded on board and contains the information about the name of the vessel, berth, date of shipment, कब शिपमेंट स्टार्ट होगा, वेसल का नाम क्या है, कौन सी बर्थ है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द पैकेजेस, मार्क्स एंड नंबर्स कितने हैं, पैकेजेस कैसे हैं, उसकी पैकेजिंग कैसे की गई है, कंडीशन ऑफ द कार्गो एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑन बोर्ड द शिप एटसेट्रा. सो ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन होती है रिसिप्ट में एंड दैट रिसिप्ट इज नोन एज मेड्स रिसिप्ट. और नेक्स्ट स्टेप आपका कस्टम क्लियरेंस के बाद आपका यही आता है टू ऑब्टेन मेड्स receipt. Okay, and one more thing I would like to add on over here, that student, maid's receipt actually it is of two types. Okay, one is your clean receipt and the another one is your foul receipt. अब clean by the name itself it is clear. Clean मतलब एकदम साफ receipt. अब इसमें क्या देखते हैं, if the captain of the ship or his mate is satisfied with the पैकिंग ऑफ द गुड, क्योंकि भाई जब सामान आपका शिप लोड हो रहा है तो पैकेजिंग वगैरह अच्छी होनी चाहिए ना, तो अगर पैकेजिंग सेटिस्फाइड है देन ही इशूज अ क्लीन रिसिप्ट. एंड इफ द पैकिंग इज अनसेटिस्फैक्ट्री, अगर वो सेटिस्फाइड कैप्टन सेटिस्फाइड नहीं है पैकिंग से, देन व्हाट विल हैपन, द कैप्टन ऑफ द शिप विल मेक अ रिमार्क एंड such a receipt is known as your foul receipt. अब clean receipt और foul receipt का use क्या है? So actually the exporter should always try to get a clean receipt. Why? Because insurance company may not bear liability for loss in case of foul receipt. क्योंकि अगर मेट ने ये मेंशन कर दिया कि पैकेजिंग फाउल थी, फाउल रिसिप्ट था, पैकेजिंग सही नहीं थी, तो उस केस में अगर लॉस होता है आपके सामान को तो इंश्योरेंस कंपनी से आपको कोई भी लॉस का कवरेज नहीं मिलेगा. इंश्योरेंस कंपनी आपके लॉस का को बेयर नहीं करेगी. ओके, देन द पोर्ट सुपरिटेंडेंट क्या करता है, ऑन रिसिप्ट ऑफ द पोर्ट ड्यूज हैंड्स ओवर द मेड्स रिसिप्ट टू दी C&F एजेंट. अब मेड्स रिसिप्ट को C&F एजेंट जो क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट था उसको हैंड ओवर कर देगा. देन next step is your payment of freight and issuance of bill of lading. अब जो एजेंट है वो हैंड ओवर दिस मेड्स रिसिप्ट टू द एक्सपोर्टर, सारे जो रिसिप्ट थे उसको एक्सपोर्टर को हैंड ओवर कर दिया. नाउ व्हाट नेक्स्ट, अब पेमेंट करना होगा ना शिपिंग कंपनी को. सो पेमेंट ऑफ फ्रेट एंड इशुएंस ऑफ बिल ऑफ lading. So how will the exporter pay the shipping company? So the exporter hands over the maid's receipt to the shipping company and pays the freight charges. The C&F agent surrenders the maid's receipt to the shipping company for computation of freight. अब हैंड ओवर करेगा और फ्रेट को कैलकुलेट किया जाएगा कि कितना भाड़ा लगेगा, सामान के हिसाब से फिर उसका फ्रेट चार्ज होगा. आफ्टर रिसिप्ट ऑफ द फ्रेट द शिपिंग कंपनी इशूज अ बिल ऑफ lading which serves as an evidence that the shipping company has accepted the goods for carrying to the designated destination. मतलब अब प्रूफ क्या होगा, एक्सपोर्टर के पास भी प्रूफ होना चाहिए ना कि इस वेसल से हमारा सामान जा रहा है. तो जो वो प्रूफ होता है जो शिपिंग कंपनी इशू करती है दैट इज नोन एज बिल ऑफ लेडिंग विच एक्ट एज एन एविडेंस. शिपिंग कंपनी की तरफ से ये एविडेंस है आपके पास कि शिपिंग कंपनी ने आपके सामान को आपके बताए हुए डेस्टिनेशन पे पहुंचाने की जिम्मेदारी ली है. ओके, इन द केस द गुड्स आर बीइंग सेंट बाय एयर दिस डॉक्यूमेंट इज रेफर्ड टू एज एयरवेज बिल. अगर यही सामान आपका फ्लाइट से जा रहा है, एयरप्लेन से जा रहा है, एयरवेज से जा रहा है, सो इट विल बी नोन एज एयरवे बिल. और जब आपका जो सामान शिपिंग कंपनी लेके जा रही है इट इज नोन एज बिल ऑफ लेडिंग. क्लियर?
Then what next? Now preparation of invoice. The invoice, what is the invoice? It states the quantity of goods sent, the amount to be paid by the importer. Okay, the invoice is prepared and the C&F agent gets it duly attested by the customs. So now we reach the last step, that is securing payment. So after the shipment of goods, the importer, he is informed about it by the exporter. Importer को बताया जाएगा ना कि हाँ आप सारा सामान शिप हो गया है. So the importer now he needs various documents to claim the title of the goods on their arrival at his or her country and getting them custom cleared. अब custom clearance इसके यहाँ भी तो होगा. So अब क्लेम करने के लिए गुड्स की टाइटल, नाउ इंपोर्टर को भी तो कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए होगा ना. आप क्या दिखा के बोलोगे कि मेरा सामान है. सो व्हाट आर दोज डॉक्यूमेंट्स? द डॉक्यूमेंट्स दैट आर नीडेड, they are the certified copy of invoice, bill of lading, packing list, insurance policy, certificate of origin and letter of credit. Then these documents they are sent by the exporter through his banker, and the exporter वो इंस्ट्रक्शन देता है बैंकर को कि आप हैंड ओवर करेंगे डॉक्यूमेंट्स इंपोर्टर को तभी जब इंपोर्टर एक्सेप्ट्स द बिल ऑफ एक्सचेंज. ओके, या तो बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करे या फिर पेमेंट तुरंत करे. ओके, एंड व्हाट इज बिल ऑफ एक्सचेंज? इट इज अ रिटन इंस्ट्रूमेंट where by the person issuing the instrument directs the other party to pay a specified amount to a certain person or the bearer of the instrument. And I hope bill of exchange you must have studied in accounts also, need not to explain you a lot. Okay, so ये हो जाएगा and then the importer pays the money to the bank and he gets all the documents handed. So here we end up with this process, with the steps of your export procedure. And student, you need not to learn all these points, these 17 points. But हाँ आपको like bill of lading क्या होता है, certificate of origin क्या होता है, these types of question may be asked. Okay, so I hope I tried my best to explain you all these 17 steps. So please do like, share and subscribe the video, and in case you are having any trouble related to any point, if you're not able to understand any of the points, so please ask me through comment box. I will try my level best to explain it to you all.